फ्रेंड्स, हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस आफ्टर एन एग्जाम कि चीज़ें पढ़ी रखी थी, चीज़ें समझ भी आ रखी थी, बस चीज़ें याद नहीं थी. इफ आई वुड हैव डन अ बेटर रिविजन, I would have got better marks. Or maybe people who are studying right now for an exam, they would be getting a feeling like this, that I am able to understand everything, I am going at a good pace, I am able to get good marks in the mock test, but then they are not still getting that confidence because they know that they are not able to retain the things, right? If answer to any of these questions is yes, then this video is for you guys. In this video I will be discussing with you 3-step revision technique, and it's a proven revision technique. If you can use this, it can do wonders for you. The first step in revision is setting the base for revision, doing the groundwork for revision. Revision ऐसे नहीं होती है कि कुछ भी पढ़ लिया और फिर एक महीने बाद सोचा कि इसको रिवाइज कर लेते हैं. यू शुड हैव डन द ग्राउंड वर्क वाइल यू आर रीडिंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम. व्हाट डू आई मीन बाय दैट ग्राउंड वर्क? फर्स्ट इज use of marker to highlight important or difficult things. Personally, I use two markers, two colored markers. Blue for something important, red for something difficult and important, difficult for me at least. So you should use markers while studying to highlight things, right? You should take printout of summary sheets and keep highlighting the content as per your division, whatever you want. Then use visuals to focus, right? Visuals help you to retain better. If you understand the visuals, then it will help you to revise quickly later. तो ये जो भी डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, विच आर गिवन इन योर कोर्स, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं दिए हैं. इट दे हैव अ पर्पस. Try to connect whatever you are able to understand through these visuals, through these diagrams which are given in your course. Then equally important are the flow charts. If you are reading about steps for, say, selecting a candidate, steps for decision making process, steps for IPO, then flow charts can be really helpful to understand things and revise them quickly later. So this is the first step. बेस होना, ग्राउंड वर्क होना बहुत जरूरी है. आप सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं, कुछ हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, कुछ नोट्स नहीं बना रहे हैं, then later you will never be able to revise it quickly because you don't know that what is important here. And if you would have marked something important the first time you read it, it would be very easy to revise later, right? So that was about the groundwork. The next step is scientific revision schedule, right? Now this is very important. This is the most important step in this 3-step revision technique. Now there is a famous psychologist by the name Ebbinghaus, right? He has given a forgetting curve जो हमें बताता है कि हम जो भी चीज पढ़ते हैं उसको हम किस स्पीड से फॉरगेट करते हैं. तो एबिंगहॉस ने जो रिसर्च की थी, उन्होंने बताया था कि हम जो भी पढ़ते हैं विद इन मिनट्स अराउंड 20% ऑफ दैट इज लॉस्ट. तो मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के विद इन मिनट्स, विद इन 2-3 मिनट्स आप 20% चीजें भूल जाएंगे. ठीक है. फिर उन्होंने बोला कि विद इन 20 मिनट्स only 58% is left, means 62% is gone. Within 1 hour only 44% of what you have read you would remember. It means more than 50% is gone. और ऐसे करते करते 6 दिन बाद सिर्फ 25% चीजें आपको याद रहेंगी. भाई ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. If we are able to remember only 25% within 6 days, right, then I mean it means we are not being productive. 6 दिन के बाद हमने जो भी पढ़ा सिर्फ 25% याद है. और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी. अगर है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि you are also facing this problem. Now is there a solution to this problem? इसका कोई इलाज है? The answer is yes. So what I call this is I-111 technique of revision. ठीक है, बहुत आसान है. सो हमें रिवीजन कब करनी है, हमें अपनी मेमोरी में उन चीज़ों को रीइंफोर्स कैसे करना है. फर्स्ट इज इमीडिएट रिवीजन. इफ यू रीड समथिंग अ पर्टिकुलर डे, रिवाइज इट एट द एंड ऑफ द डे. इट विल नॉट टेक मच टाइम. देन revise it next day, right? So if you have read something today, revise it next day, then revise it after 1 week, and then revise it after 1 month. So in total you have to do 4 revisions. Immediate, I for immediate, 1 for 1 day, 1 for 1 week and 1 for 1 month. I-111 टेक्निक, इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, बहुत जरूरी है. इट वुड बी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट दिस, पर पढ़ते रहना और कुछ रिटेन ना कर पाना, इससे अच्छा है एटलीस्ट जो पढ़ रहे हैं उसको इस टेक्निक से रिटेन करेंगे तो इट वुड बी मोर यूजफुल इन माय ओपिनियन. अब फर्दर इसमें मेरा क्या मानना है
कि आप पहले दिन जब रिवाइज करते हैं, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी यूजफुल इन करंट अफेयर्स. कोई भी न्यूज़ आई, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया, ऐसे उसको बता दिया कि यार तुम्हें पता है मोदी जी ने फार्म लॉज रिपील कर दिए हैं, ये वाले फार्म लॉज थे, पिछले साल नवंबर में एजिटेशन शुरू हुआ था, या आपको पता है इंडिया ने ये मिसाइल लॉन्च कर दिया, आपको पता है इंडिया ने इस डैम का नाम चेंज कर दिया है. ऐसे ऐसे करके जब आप किसी को बताएंगे या डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें आप लंबे समय तक रिटेन करते हैं. अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी जाके बताने लग जाओ. ठीक है. Next is after 1 week when you revise it, do the MCQs. Do not do the MCQs of any chapter immediately, or I mean any magazine chapter, whatever it is. Do those MCQs after 1 week. That is the revision that you are doing after 1 week. और एक फोल्डेड पेपर ले लीजिए, एक ऐसा पेपर ले लीजिए, बहुत यूजफुल है ये. ठीक है. एक ऐसा पेपर ले लीजिए, इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, एंड वॉट एवर MCQs यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट आफ्टर 1 week, राइट द क्वेश्चन एयर, इसके पीछे यहाँ पे आंसर लिख लीजिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू डू करेक्ट इन दैट MCQ टेस्ट, उस क्वेश्चन को यहाँ लिख लीजिए और इसके पीछे उसका आंसर लिख लीजिए. सो व्हाई वी आर डूइंग दिस, सो दैट लेटर वी कैन जस्ट रेफर दीज MCQs quickly, because each MCQ will have a concept which you were not able to remember. So later we will just refer to this sheet, question answer. This is very useful, right? And this is not much very time consuming. You will hardly have say 5-10 MCQs out of a 50 MCQ test which you will not be able to remember, but through this sheet which you can refer later, I mean जो आपको कभी याद नहीं रहता था वो भी याद होना शुरू हो जाएगा. ठीक है गाइस. So this is about 1 week. Then after 1 month, जो आप 1 month के बाद रिवीजन कर रहे हैं, I would recommend use this revision as a form of recall. तो रिवीजन हम जनरली कैसे करते हैं, हम खोल लेते हैं, है ना, हम अपने नोट्स या जो भी है अपने ऑनलाइन नोट्स या हमारी समरी शीट्स का प्रिंट उसको खोल लेते हैं और पढ़ने लग जाते हैं. ये आप कर चुके हैं, ये आप 3 बार कर चुके हैं, इमीडिएट 1 day 1 week. नाउ आई वुड से कि आप रिकॉल पे जाइए. आप कोई नोट्स मत खोलिए, कोई समरी शीट मत खोलिए, सिर्फ एक प्लेन पेपर लीजिए और उस पर ट्राई टू रिकॉल दैट व्हाट यू लर्नड इन दिस चैप्टर. फॉर एग्जांपल इट वाज मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन लिखिए. ठीक है. ट्राई टू रिकॉल. ओके, फर्स्ट आई रेड मैस्लो थ्योरी में मैंने क्या पढ़ा, आप ऐसा कुछ चार्ट तो बना पाएंगे, आपको याद रहेगा. ठीक है. उसके बाद You learned about the implications कि Maslow theory कहती है deficiency needs must be met, because till the point these needs are not met, people would not try to aim higher. ऐसे करके सारी implications जितनी भी याद हैं, 10 थी, 4 याद हैं, 4 लिखो, कोई इशू नहीं है. ठीक है. फिर क्रिटिसिज्म लिखिए. ठीक है. जैसे मैस्लो थ्योरी का क्रिटिसिज्म है महात्मा गांधी से रिलेटेड कि महात्मा गांधी की लोअर ऑर्डर नीड्स वर नॉट फुलफिल्ड, स्टिल ही वेंट फॉर हायर ऑर्डर नीड्स. So that basically defies Maslow theory, right? Similarly, there is one more criticism in Maslow theory कि position of sex is not right. People say that a position of sex should not be under physiological needs, rather it's an emotional need which should be under social need. So इस तरह से जो भी क्रिटिसिज्म इम्प्लीकेशन आपको याद आ रहे हैं आप उनको लिखिए. ठीक है. मैस्लो थ्योरी हो गई, नेक्स्ट थ्योरी एल्डरफर थ्योरी, वो थ्योरी, ऐसे ऐसे करके आप जितने पेज लिख सकते हैं रफ. आई एम नॉट टेलिंग यू टू मेक नोट्स बिकॉज यू विल नॉट हैव टाइम, बट रफली ट्राई टू रीड, try to write in a very rough manner. Maybe you can tear that page apart later, doesn't matter, but this is for your recall. Recall is very very important, especially from the descriptive perspective. ठीक है. तो आई होप ये याद रहेगा आपको. 1 day 1 week 1 month, I111 टेक्निक, 1 day डिस्कस, बोलो, लोगों के पास जाके बोलो मैंने ये पढ़ा, एटलीस्ट फॉर करंट अफेयर्स. 1 week के बाद MCQs करने हैं, फोल्डेड पेपर यूज करना है टू राइट डाउन द MCQs which you were not able to attempt. After 1 month, use recall as a form of revision rather than reading from the notes or whatever web pages. Just use recall. That's the best form. ठीक है. और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Then whenever I tell this technique to somebody, students come to me, सर ऐसे तो प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ 1 तारीख को पढ़ी थी वो याद ही नहीं रहता कि 7 को रिवाइज करनी है, फिर महीने के एंड में रिवाइज करनी है. सो द सोल्यूशन टू दैट इज मेंटेन अ डायरी. सो इफ यू रीड समथिंग ऑन 29th of June, राइट, there would be a revision for that next day, that is 30th of June, right? Plan it here only. 30th June, revision for motivation. Then after 1 week, right, on 6th July, in your diary, the same day when you have read on 29th of June, make a plan for 6th July. On 6th July, I have to revise motivation. Then in this same diary, on 29th July page, right, on 29th July page, write that on 29th July, I have to
रिवाइज फॉर मोटिवेशन। ये डायरी बहुत अच्छी है, आपको जो डेट वाइज डायरी होती है, इट विल हेल्प यू टू प्लान प्रॉपरली, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, तो ये इस डायरी से इंप्लीमेंट हुआ। कोई भी डायरी आपके ऑफिस में फ्री मिलती रहती है, ठीक है, या फिर कोई दुकानदार फ्री दे देता है, कोई शॉपकीपर फ्री दे देता है, उस डायरी को यूज कीजिए, घर पे बेकार पड़ी होगी, एंड यूज दैट डायरी फॉर दिस पर्पस। And the last technique or the last step I want to discuss is 80-20 rule, right? This rule is applied or applicable everywhere. Don't try to be perfectionist. By 80-20 rule I mean there can be various interpretations. One is कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 20% ही है, रेस्ट 80% तो हमें पढ़ना पड़ता है, कुछ कुछ उसमें से आ जाता है, तो वो 20% हमें अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पेपर उसमें से आता है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इन आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स फॉल इन दिस 20% ब्रैकेट, इनको हमें और अच्छे से रिवाइज करना है। और द अदर इंटरप्रिटेशन कैन बी दैट समटाइम्स इवन इफ वी आर टारगेटिंग टू कवर द होल सिलेबस, right, thoroughly, comprehensively, I don't want to say that this chapter is important, that chapter is important, then also I am sure that this rule can be applied in a way that 80% of the chapters you would find easy, you would not need them to revise multiple times, वो आपको आते हैं, but still 20% of the chapters you will find them difficult, you will not be able to retain them, you will always be kind of कि यार ये चैप्टर बड़ा मुश्किल है, ये चैप्टर करना बड़ा मुझे दिक्कत देता है, तो उन चैप्टर्स पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये 80-20 रूल जरूर अप्लाई कीजिए। यू कांट डू एवरीथिंग एवरी डे, दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट, जिस चीज की जरूरत है, जो चीज प्रायोरिटी पे है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको 20% ब्रैकेट में डालिए और उस पर फोकस कीजिए। दैट्स इट गाइस। सो आई थिंक ये जो 3 स्टेप रिवीजन टेक्निक है, आपको कहीं ना कहीं इफ यू ट्राई टू अप्लाई दिस, यू विल हैव प्रॉब्लम्स इनिशियली, बट लेटर you will find that it will do wonders for you. You will really be able to reap the results from this technique. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, राइट? वी कीप sharing lot of content, lot of free content, and you can also join our Telegram channel. The description, the link for which is given in the description of this video. On our Telegram channel also we keep sharing various kinds of informations and free content and free PDFs. Have a nice day guys. Bye bye. Thank you.